Dear students, myself Mohammad Salim sir, Bioscience wala. Today we are going to discuss about the in kingdom Plantae subkingdom Phanerogames. Phanerogram is a group of the plant under kingdom Plantae. The group of the plants which includes in the phanerogames are well developed, have complex structures and complexity in their structure, and have advanced characters in relation to the evolution. After cryptogames, they are terrestrial plants and have well developed reproductive parts and vascular system, and their sporophytic type of body is differentiated into true, leaves, stem and flower. These are the main important features of the phanerogames. Phanero means, what is meant by phanero? Phanero means visible, and games means marriage. Means what? The plants of the group of the plants which shows well developed reproductive organ and they develop seeds. Phanerogames are also called as seed bearing plants. We call them seed bearing plants, or the group of the plants which have ability to develop the seeds. In cryptogames, there is no seed formation which takes place. So here, phanerogram is visible and gamous means marriage, means the group of the plants which have what? Which have the visible sexual organ and visible sexual parts, reproductive parts, and they are in the form of gonads or reproductive organ. So students, the plants, the group of the plants which have special types of the structure for reproduction and produce seeds are called as phanerogames. All phanerogames plants have sporophytic body The sporophytic body is differentiated into true, leaves, stem, to root and flowers. Sporophytic body of the phanerogames are diploids. What is meant by diploid? Means they have two set number of the chromosomes. इनकी ये जो बॉडी होती है डिप्लॉयड होती है. So students, it is about their sporophytic characters. All the phanerogames have complex vascular tissue. Means they have complex vascular tissue, means they have vascular system. The complex vascular tissues are xylem and phloem. You know very well what is the function of xylem and what is the function of phloem. So students, they have the vascular tissue. On the basis of their seeds, which are enclosed or open, all phanerogames are classified into two groups,
one is gymnosperm. Gymnosperm. These group or the plants of these groups have naked seeds. Naked seed. Another group is angiosperm. The plants of these groups are called as angiospermic plant. In this group, seeds are enclosed in ovary wall और in the fruit में या ओवरी वॉल में जो है इनके सीड क्लोज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है वो फेनोरगेम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी बुनियाद पर हमने फेनोरगेम्स को क्रिप्टोगेम्स से सेपरेट किया। सबसे पहले तो फेनोरगेम्स आर सीड bearing plants. They produce seeds. They have well developed reproductive organ, vascular systems, and their sporophytic type of the body that is diploid is differentiated into true root, true leaves, true stem, and flower and seeds. It is the important feature of the phanerogames, and we have seen that all these phanerogames are divided into. Phanerogame is what? Phanerogame is the subkingdom of the kingdom planting. So these phanerogames is divided into two division or two phylum. One is gymnosperm, another is angiosperm. Now students, after this we will see division gymnosperm. Division gymnosperm. Division gymnosperm. ये जो डिवीजन हमने अलग की है, क्यों की है अभी आपको मैंने बताया हूं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है स्पर्मा से बना है स्पर्म, दैट इज सीड्स। मींस वो प्लांट्स या वो ग्रुप ऑफ द प्लांट जिसमें नेकेड सीड होते हैं जो हमारी आंख के लिए विजिबल होते हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिम्नोस्पर्म की? ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर, नंबर 1, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन, ये सदाबहार होते हैं। पेरिनियल, एवरग्रीन, पेरिनियल, वुडी, श्रब्स और ट्रीज होते हैं। इनमें कुछ श्रब्स भी होते हैं और कुछ ट्रीज भी होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल, वुडी और श्रब और ट्रीज होते हैं। सो स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली लार्जर इन साइज। ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है और इनके हाइट के साथ साथ इनकी गर्द भी ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह से ये जो क्या होते हैं, इनके जो इनका जो स्पोरोफाइट्स बॉडी होता है, देयर स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो काय पर डिपेंड कंसिस्ट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड सीड्स। ये इनके जो है बॉडी के पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से इनके अंदर जो रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? टैप रूट सिस्टम होता है। मींस रूट जो होती है वो टैप रूट होती है। कुछ ही प्लांट्स के अंदर जो है रूट के अंदर मॉडिफिकेशन दिखता है। हमको एक मॉडिफिकेशन साइकस में दिखता है और एक पाइनस में दिखता है। पाइनस और साइकस ये इसके दो प्लांट्स हैं। एक को हम साइकस कहते हैं, एक को पाइनस कहते हैं जिम्नोस्पर्म के। तो जो साइकस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो रूट होती है
वो कौन सी होती है? कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट। ये जो रूट होती है ये काहे के लिए होती है? इसके रूट के सेल में अलगी का एसोसिएशन, रूट के सेल का और अलगी का एसोसिएशन होता है। काहे के लिए होता है एसोसिएशन? मींस दे हैव द symbiotic relationship and this symbiotic relationship is for what? Yes, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए ये होता है। तो ये जो एसोसिएशन है अलगी का और काय का है? यस, रूट सेल का है। ठीक है, तो रूट का नाम क्या है? कोरोलॉइड रूट। ये रूट जो है साइकस में पाई जाती है। काय में पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। दूसरा जो ग्रुप है प्लांट्स का वो है पाइनस, और इनके अंदर जो रूट होती है इसको हम माइको राइजल रूट कहते हैं। इनकी रूट को हम माइकोराइजल रूट कहते हैं। और ये जो रूट होती है ये कैसी होती है? ये इसका एसोसिएशन जो है फंजाई के साथ होता है, यानी यहां अलगी बिलिब्रिन जो है अलगी होती है और यहां पर फंजाई होती है, इसकी एसोसिएशन। तो दो ऑर्गेनिज्म का यहां एसोसिएशन है, तो इसको इस रूट को हम माइकोराइजल रूट कहते हैं और उस रूट को हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं। और दोनों रूट का के लिए मेन फंक्शन दोनों का नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनकी जो लीव्स होती है वो जो होती है क्राउन की शक्ल में होती है, क्राउन ऐसे सीधे सीधे निकलती है और क्राउन की जैसी होती है, क्राउन की जैसी। तो इनकी जो लीव्स है ये क्राउन की जैसी होती है, सीधी सीधी होती है और पिन्नेटली होती है। तो स्टूडेंट्स लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स। इनकी जो लीव्स है वो दो तरह की होती है, डायमॉर्फिक होती है, डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक लीव्स यानी क्या? यानी जिसमें डायमॉर्फिज्म होता है, एक लीफ बड़ी होती है और एक लीफ छोटी होती है। तो जो लीव्स बड़ी होती है उसको हम मेगा, या क्या कहेंगे उसको? मेगा फिल, और जो छोटी होती है उसको माइक्रोफिल कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हमने ये दो वर्ड वहां पर भी पढ़े हैं टेरिडोफाइटा के अंदर, वहां हमने क्या कहा? माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल। यहां हम क्या नाम दे रहे हैं इनको? यस, मेगास्पोरोफिल। सो मेगाफिलस और माइक्रोफिलस। तो ये जो रूट हो जाएगी, ये जो लीफ हो जाएगी, ये हो जाएगी मेगाफिलस और ये हो जाएगी माइक्रोफिलस। तो लीव्स आर डायमॉर्फिक, लीव्स आर डायमॉर्फिक, दे आर माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। और कुछ लीफ जो होती है वो जीरोफिटिक होती है। जीरोफिटिक मींस जीरोफाइटिक कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं। जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक मींस दे हैव एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट। किसका एडेप्टेशन है उनके अंदर? एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर लीफ का एडेप्टेशन क्या रहता है? काय के लिए रहता है? टू सिक्योर द वाटर, है ना? वाटर को एब्सॉर्ब करके रखना चाहते हैं। काय में एब्सॉर्ब करके रखना? लीफ के अंदर, ताकि पानी की वहां पर कमी रहती है डेजर्ट में, तो पानी की कमी रहती है, इसलिए उसकी कमी को कैसे पूरा किया जाएगा है? यस, वाटर को रिस्टोर करके। अब इसमें क्या होता है? इनकी जो लीफ होती है वो जीरोफाइटिक होती है और उसमें जो स्टोमेटा होता है वो संकन होता है। संकन, स्टोमेटा, संकन टाइप ऑफ द स्टोमेटा होता है। ये संकन टाइप ऑफ द स्टोमेटा काय के लिए रहता है? ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर ही रहे, खुले ना। Stomata is the pore which is present on the inner surface of the leaf for what? For exchange of the gases, for transpiration. तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, कम से कम ट्रांसपिरेशन हो, इसके लिए जो लीफ का, जो जीरोफिटिक लीफ का जो मॉडिफिकेशन रहता है वो संकन टाइप उसमें स्टोमेटा होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इनके जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो इनके जो जाइलम और फ्लोएम जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, तो जाइलम के अंदर जो है वो ट्रू वेसल्स नहीं होते हैं और फ्लोएम के अंदर जो है वो
कैम्पियन सेल्स नहीं होते, यानी जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन जाइलम फाइबर होते हैं, ट्रेकाइड्स होते हैं, ठीक है। और फ्लोएम में कैम्पियन सेल नहीं होते, यानी फ्लोएम सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, सीव सेल होते हैं, सिंप्लेक्स होती है। ये जो है अलग अलग कंपोनेंट है जाइलम और फ्लोएम के। तो ये कंपोनेंट्स में इसमें से दो कंपोनेंट नहीं होते हैं, एक क्या नहीं होते हैं, जाइलम, यस बोलिए, वेसल्स, जाइलम में जाइलम वेसल्स से होते हैं, फ्लोएम में कैम्पियन सेल्स नहीं होते हैं। इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेकिन ये सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है ये कैसे होता है? सेकेंडरी ग्रोथ इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ द, यस व्हाट, स्पेशल टाइप ऑफ द टिश्यू व्हिच हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से प्लांट्स जो है वो गर्थ में बढ़ते हैं, हाइट में बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन हेल्प करती होंगी? कैम्बियम। स्पेशल टाइप्स ऑफ द सेल होते हैं ये, और जिनकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स में होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं, यस, ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो स्टेम्स हैं, इनके जो स्टेम्स हैं वो इरेक्ट भी होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इरेक्ट स्टेम कहीं में होता है, साइकस में होता है, ठीक है। स्टेम इरेक्ट भी होते हैं और ब्रांच भी होते हैं, इरेक्ट भी होते हैं और ब्रांच भी होते हैं। ऊडी होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है। स्टेम इज इरेक्ट, ब्रांच और अनब्रांच। तो जो अनब्रांच होते हैं उसके एग्जांपल हम लिख लेंगे यहां साइकस, और जो ब्रांच होते हैं उसके एग्जांपल लिख लेंगे हम पाइनस। दो एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो स्टेम इज इरेक्ट, एरियल, पूरा हवा में होता है, फैला हुआ नहीं होता है जमीन पर, ठीक है। इरेक्ट सीधा होता है, एरियल होता है, ब्रांच होता है, अनब्रांच होता है। जो ब्रांच होता है वो पाइनस में होता है, जो अनब्रांच होता है वो साइकस में होता है। इस स्टेम के ताल्लुक से हमने स्टूडेंट्स ये देखा है। इसी तरह से इनके अंदर जो है फ्लावर जो होते हैं ये कौन की शक्ल में होते हैं? काई शक्ल में होते हैं, कौन की शक्ल में होते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं वो जो कोन्स होती है, वो कोन के ऊपर जो सीड होते हैं वो हमको खुले दिखाई देते हैं, हमको खुली आंख से दिखाई देते हैं, नेकेड आई से दिखाई देते हैं। तो ये प्लांट्स जो होते हैं, इनकी जो सीड्स होती है उसको कोई नेचुरल कवरिंग नहीं होती है। इनकी नेचुरल कवरिंग नहीं होने की वजह से ये इनके जो फ्लावर्स होते हैं या इनके अंदर जो स्पोरोफिल्स होती है, स्पोरोफिल्स किसे कहते हैं? स्पोरोफिल, ये मैंने टर्म पहले भी समझाया आपको। वो लीफ होती है जो स्पोर बियर करती है, माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल होंगी। इसमें पोलन ग्रेन तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे? पोलन ग्रेन या पोलन तैयार होंगे, या फिर हम इसको स्पोर्स कह सकते हैं, ठीक है। स्पोर्स तैयार होंगे, या हम माइक्रो स्पोर भी कहेंगे, माइक्रो स्पोर इसमें तैयार होते हैं। इसी तरह से एक होती है मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, वो लीफ जिसमें मेगा स्पोर तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? मेगा स्पोर तैयार होते हैं। अब ये मेगा स्पोर में बाद में क्या तैयार होते हैं? ये मेगा स्पोर में बाद में ओयूल तैयार होते हैं, और वो ओयूल के अंदर फिर क्या तैयार होते हैं? सीड्स तैयार होते हैं। तो ये माइक्रो स्पोरोफिल के मुकाबले में इनके अंदर मेगा स्पोरोफिल बड़ी होती है, लार्जर होती है, बड़ी होती है और लार्जर होती है। तो स्टूडेंट्स, ये मेन जो स्पोर्स है या माइक्रोस्पोर्स है, ये तैयार हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम में, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो होगी ये माइक्रोस्पोरोफिल में होगी, और माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर जो है क्राउन बनाते हैं, एक फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे हम कोन कहते हैं। तो इनके मेल फ्लावर को हम मेल कोन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल कोन। इसी तरह से जो ये होती है मेगास्पोर जो होते हैं, ये मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में डेवलप होंगे, यानी ओयूल में डेवलप होंगे, और ये जो ओयूल है ये मेगास्पोरोफिल में होंगे, और ये मेगास्पोरोफिल जो है अगर सिंगल होंगी तो एक स्पोरोफिल की जैसी नजर आएगी आपको, या बहुत सारे ये भी क्राउन की शक्ल में होंगे। तो इनका जो
फीमेल फ्लावर होता है उसको हम फीमेल कोन कहेंगे। क्या कहेंगे? फीमेल कोन। यानी मेल कोन इज मेल फ्लावर एंड फीमेल कोन इज फीमेल फ्लावर। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो होती है स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलनग्रेन, मेगास्पोरेंजियम, ये इनके जो है मेल और फीमेल गैमेट्स तैयार करते हैं और ये गैमेट जो है फ्यूजन के बाद जो है जाइगोट तैयार करते हैं। जाइगोट से फिर क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो जो है वो एक सीड में डेवलप हो जाता है और इस तरह से इनके सीड हमको दिखाई देते हैं, नेकेड सीड हमको दिखाई देते हैं। इस तरह से इनके अंदर जो है इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है? स्पोरोफिटिक टाइप है और गैमेटोफिटिक टाइप है। तो इनका जो स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल है ये बहुत ज्यादा विजिबल है। हमको बड़े बड़े स्टेम, फ्लावर, लीव्स वगैरह ये सब नजर आते हैं, बड़े बड़े ट्रीज पूरे नजर आते हैं। लेकिन इनकी जो गैमेटोफिटिक फेज है या इनकी लाइफ है वो हिडन है। वो काहे में हिडन है? दे आर हिडन इन द माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। तो इनका जो फेज होता है या इनका जो पीरियड होता है गैमेटोफाइटिक फेज वो शॉर्ट होता है और स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो लॉन्ग होता है। इस तरह से इनके अंदर जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? स्पोरोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ द जनरेशन इज कन्वर्टेड टू द गैमेटोफाइट जनरेशन और आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स zygote is formed. From zygote the initiation of the sporophytic phase is start with the development of the embryo develop into the seed and seed later germinate into the sporophytic plants. So it is called as the alternation and generation in the gymnosperm. I hope that students you understand this topic very well.